a wellness coach, a money coach, and an author, and a lot more things that I do in my life other than this coaching, and lot of fun, lot of enthusiasm. I am a living enthusiast. That's what I call myself. And today I'm going to talk about how your energy speaks louder than your words. Your energy is the signature, it's the opening statement for you even before you open your mouth. So if you walk into a room, your energy speaks even before you open your mouth. How does that happen? Well, energy something हम सब ने सुना है ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा से ये हो सकता है, ऊर्जा से वो हो सकता है. यस, ऊर्जा से बहुत कुछ हो सकता है. आपकी ऊर्जा आपका मुंह खुलने के पहले ही सब कुछ बता देती है आपके बारे में. आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या सोच रखते हो. जो लोग ऊर्जा को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, people who understand the language of energy can actually can actually figure out what is your energy. So, energy is not about what you say, because a lot of people you must have come across in your life who say something and mean something else. And you know it, that this what this person is saying is actually not the truth. Yes, trust your awareness, trust your energy. जब आपको ये awareness आती है कि ये इंसान जो बोल रहा है, क्या ये मीन भी वो करता है, क्या ये इसके मायने भी वही है जो ये बोल रहा है, शायद नहीं. और आपकी ऊर्जा आपको बहुत पहले बता देती है. Like I said, language, energy is the first language that you ever get introduced to, even before a child begins to speak. A human child probably begins to speak from the age of 2 or 2.5. However, the child understands the language of energy from the time it opens its eyes in the world. So a child knows when somebody carries a child, किसी बच्चे को जब गोद में लिया जाता है, कहीं पे कुछ ऊर्जाएं इतनी सूदिंग होती है, इतनी कामिंग डाउन होती है, इतनी सहज होती है कि शायद उनकी गोद में जाके बच्चा सो जाता है. एक शांति का एहसास होता है, उसको लगता है कि मुझे स्वीकार करा जा रहा है, मुझे ग्रहण करा जा रहा है, और एक बहुत शांति की नींद सो जाता है. So children and pets, they understand your language. Whether you are an animal lover or not, if a certain animal is actually drawn to you, it means that you do hold some kindness. It doesn't mean that you have to be an animal lover necessarily. A lot of people are not animal lover, but they're also not animal hater. It is the language of kindness. So you may not be really patting the animal or say a pet, but you speak the language of kindness. That language of kindness goes far and loud. Kindness is on the planet. So कोई और इसे समझ पाए चाहे ना समझ पाए, आप अगर इस भाषा को समझ सकते हो, काइंडनेस की भाषा को समझ सकते हो, तो इसका मतलब है आप खुद के लिए भी काइंड फील करते हो. बट अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, दे आर वेरी काइंड टू अदर्स, दे आर नॉट काइंड टू देमसेल्व्स, क्योंकि देयर इज अ प्रोग्राम दैट दे आर रनिंग. उनको जो करना है दूसरों के लिए करना है, बाहर करना है, बाहर देना है. ये उनकी प्रोग्रामिंग है, ये उनको सिखाया गया है, चाहे चाहे घर में सिखाया है, चाहे बाहर सिखाया है. प्लीज एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक आप खुद के लिए काइंडनेस नहीं लाएंगे, खुद के लिए वो सजगता नहीं लाएंगे, अवेयरनेस नहीं लाएंगे कि आप काइंड है कि नहीं, आप बाहर कुछ भी कर लीजिए, वो काइंडनेस दूसरों तक पहुंच ही नहीं पाएगी. इसका सिंपल रीजन ये है कि आप बाहर वही दे सकते हो जो आपके पास खुद है. आप बाहर वो नहीं दे सकते जो खुद के लिए नहीं है. सो लव एंड काइंडनेस speaks volumes, and that's why I said energy is the first language.
even before a child begins to speak, the child can perceive the energy of kindness and love. So the child gets drawn to that energy. On the other hand, child can perceive the language of judgment. जजमेंट इज जहां पे आप अपना आकलन करते हैं, दूसरों का आकलन करते हैं किसी चीज के बेसिस पे. जजमेंट इज जहां पे आप खुद की कमियां निकालते हैं, दूसरों की कमियां हमेशा निकालने में लगे रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं इसमें बहुत बुरी हूँ, या इसमें इवन पॉजिटिव जजमेंट इज अ जजमेंट. मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, या मेरा ये वो अच्छी चीजें भी जो आप बोल रहे हो वो भी बाय द वे जजमेंट ही है. सो जब आप सम रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, ना आपको पॉजिटिव जजमेंट अफेक्ट करता है, ना नेगेटिव जजमेंट अफेक्ट करता है. जजमेंट बाय द वे इज इन अ वे अ पॉइजन ऑन द प्लैनेट. जजमेंट वो सारी चीजों के लिए आपको बाधक बना देता है, सारे बैरियर्स आ जाते हैं आपकी लाइफ में उन चीजों को पाने के लिए जिनकी आप इच्छा रखते हैं. यस, मनी टू. बहुत सारे जजमेंट्स हैं मनी को लेके, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, नजरिए हैं हमारे मनी को लेके जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं. आज ही हमने एक 11 दिन का मनी प्रोग्राम खत्म किया है जो पिछले 11 दिन से चल रहा था, और बहुत सारी चीजें उन लोगों के सामने आई जो इस प्रोग्राम में थे, जो वो खुद भी नहीं देख पा रहे थे. उनको खुद भी नहीं पता था कि अच्छा मैं इस तरह से लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ और ये मुझे पता ही नहीं है. तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं. एक दृष्टिकोण, एक नजरिया जो हमारा शायद बहुत अर्ली एज में बन जाता है, आपको आश्चर्य होगा जान के, वो आपका नहीं है, वो उठाया गया है, किसी से लिया गया है. और सबसे पहला हमारा स्कूल जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो है हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े टीचर हैं. तो अगर मनी रिलेटेड इश्यूज हैं तो एक उनकी लिस्ट बनाइए कि आपका मनी को लेके नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, मनी रिलेटेड आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, जजमेंट्स क्या है, आपके जजमेंट मनी को लेकर क्या है, फिर आपके जजमेंट आपके बारे में खुद क्या है इन रिगार्ड्स विद मनी. मनी को लेते हुए आपके खुद के बारे में क्या जजमेंट है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन जो जजमेंट होता है, मनी के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि एक्चुअली सही नहीं है. अगर मेहनत करने से ही पैसे आते तो जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा अमीर होने चाहिए. या मनी को लेके हमेशा सावधान रहने की जरूरत है. सावधान रहने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है. कॉशियस और अवेयरनेस में बहुत फर्क होता है. तो जब आप मनी को लेके सावधान रहते हैं, हमेशा कॉशियस रहते हैं, आप अगर महसूस करें तो उसके पीछे एक डर की ऊर्जा है. हमेशा डरते डरते आप कोई काम करेंगे. मनी को लेके आपके अंदर हमेशा एक तरह का डर बना रहेगा. और जब भी कहीं वो चीज जिसमें आपको फायदा मिलने वाला है, आपकी जिंदगी को फायदा मिलने वाला है, आपकी जिंदगी बेहतर बनने वाली है, उस चीज में जब आप मनी डालने जाएंगे तो आप हमेशा सावधानी बरतेंगे, ना कि सजगता. सजगता, जब आप सजग रहेंगे तो आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सवाल करेंगे कि क्या मैं इस चीज में पैसे डालूं तो मेरी जिंदगी में ग्रोथ होगी, मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी, और क्या मेरे पास पैसा आएगा. ये जब आप सवाल करेंगे कि मैं अगर ये इन्वेस्टमेंट करूं, और आपको हल्कापन महसूस हो और एक अजीब सी चमक आपको महसूस हो, चाहे वो किसी और को हो चाहे ना हो, इसका मतलब हाँ वो आपके लिए सही है. तो बिंदास जाइए और इन्वेस्टमेंट वो कर दीजिए. पर जब आप सावधानी के साथ पैसे को सावधानी के साथ लेके चलते हैं, तो उन चीजों में जहां आपकी जीवन बदलने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, आपकी मनी की परिस्थिति, पैसे धन की परिस्थिति पूरी तरह बदल सकती है, उसमें भी आप 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि सावधानी की ऊर्जा है वहां पे. सोच के आपकी सोच आपको कंफ्यूजन में डालेगी, कॉन्फ्लिक्ट में डालेगी, आप किसी निर्णय पे नहीं आ पाएंगे, और फिर शायद आप उसका चुनाव ही नहीं करेंगे, उस चीज का
जो आपके जीवन को बदल सकती थी। सो कभी भी किसी भी चीज को लेके, चाहे वो मनी हो, धन हो, या जीवन का कोई और पहलू हो, सावधानी बरतने के बजाय सजग होने का चुनाव करिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉशियस, चूज टू बी अवेयर। अवेयरनेस की ऊर्जा एक थोड़ा सा परसीव करके देखिए, और एक सावधानी की ऊर्जा परसीव करके देखिए, कॉशन की ऊर्जा परसीव करके देखिए। कॉशन, इफ यू सी, जहां पे भी आपने कॉशन का क्या बोर्ड हुई? देखा हो, तो वहां पे एक बोर्ड, एक वहां पे सर्कल बना होता है, और उसमें एक क्रॉस बना होता है, राइट? ठहर जाओ, कॉशन। कॉशन का मतलब ही होता है वार्निंग। अब वार्निंग आपको सिर्फ डराने डराने की ऊर्जा दे रही है और चेतावनी दे रही है, जबकि सजगता की ऊर्जा, अवेयरनेस की एनर्जी वो है जहां वो आपको सारे पॉसिबिलिटीज दिखा रही है, सारी संभावनाएं आपको दिखा रही है। और उसके बाद वो पॉसिबिलिटी, वो संभावना जिसमें आपको बहुत हल्कापन महसूस होता है, जब आप उसका चुनाव करते हैं, व्हेन यू चूज दैट पॉसिबिलिटी, व्हिच एक्चुअली, व्हेन यू मेक दैट चॉइस व्हिच एक्चुअली ओपन्स मेनी पॉसिबिलिटीज, you feel lighter and you go ahead with that choice. क्या पॉसिबिलिटीज पहले से ही दिख जाती हैं? नहीं, पहले आपको चुनाव करना होता है। योर चॉइस क्रिएट्स अवेयरनेस। जब आप किसी चीज का चुनाव करते हैं, तो अवेयरनेस के, सजगता के दरवाजे खुलते हैं। अगर आप पहले से ही देखने लग जाएं कि अच्छा मैं ये करूं, पहले बताओ, मुझे पता चल जाए कि इससे क्या होने वाला है, तो उसमें आपको सिर्फ जजमेंट ही आएगा, सजगता नहीं आएगी। क्योंकि आप रिजल्ट पहले से ही सोच कर बैठे हैं, आप रिजल्ट पहले से ही निर्धारित करके बैठे हो, चाहते हैं कि आपको रिजल्ट पहले पता चल जाए, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए आप एग्जाम पहले देते हैं, रिजल्ट बाद में आता है। भले ही जिस दिन रिजल्ट आ रहा होता है आप एंशियस होते हैं, अरे रिजल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फेल होगा, क्या है, मुझे एक बार पता चल जाए। पर सबसे पहले आप एग्जाम देते हैं, हाँ कि ना? इसी तरह लाइफ में सबसे पहले आप चुनते हैं, चॉइस करते हैं, and then you get the awareness, the choice that you have made is actually going to work for you, and in what direction it will work for you. You'll get the whispers, आपको उसकी आहट मिलने लग जाएगी। और उसका सबसे पहला जो उसके लिए रिक्वायर्ड चीज है, वो है पूरी तरह से अपने अंदर बिलीव करना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके एक चॉइस करते हैं, और आपको हल्कापन महसूस होता है, भले कई बहुत लोग हैं और लोग हैं जो उस चीज को चूज नहीं कर रहे हैं, या वो शायद आपको भी चेतावनी दे रहे, देखो ये मत करो, शायद ये काम नहीं करता है। दूसरों की बातों में आने के पहले खुद एक सवाल करिए, क्या मैं इस चीज का चुनाव करूं? ये बाय द वे टूल है आज का। क्या मैं अगर इस चीज का चुनाव करूं तो मेरा जीवन बेहतर बनेगा? If I choose this thing, whatever that thing is, will my life become better and greater? And if you get lighten up, आपको एक अलग सी हल्कापन महसूस होता है अपने अंदर, अपनी बॉडी के साथ, और एक चमक सी महसूस होती है, गो हेड विद इट। ये आपकी इंट्यूशन, आपकी आंतरिक शक्ति जो है, आपको एक रास्ता दिखा रही है, हाँ इसके साथ आगे जाओ। We know there is no guarantees in life. There is guarantee of nothing in life. We all know that, right? There is no guarantee to the next breath also, correct? But you are choosing. You are choosing to breathe, correct? You are choosing to live, right? So your choice is the most important thing in your life. आपकी चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। It's the greatest power that you have. So when you realize that your greatest power is the power of choice, all you have to know is whether what you are choosing is going to work for you or is not going to work for you. To know that whether what you are choosing is going to work for you or not going to work for you, and it is for you.
It is not in reference to other people that you know, maybe your friend, your family. No, we are only talking about you. So दूसरों के रेफरेंस पॉइंट मत लीजिए, दूसरों के संदर्भ मत लीजिए. उनकी लाइफ में इस चुनाव पर्टिकुलर चॉइस ने काम किया कि नहीं किया, उसके ऊपर उसके ऊपर निर्धारित होकर अपने चुनाव मत करिए, बिकॉज हर एक की जिंदगी अलग है. एवरीवन्स लाइफ इज डिफरेंट. You process life in a different way, you live your life in a different way. So once you get this clarity that your choice, your power to choose is the greatest power you have in your life, now all you have to do is you have to pick that thing. It could be one thing, it could be 10 things, and for each of them, just ask, if I choose this, will it work for me? If I don't choose this, will that work for me? And whichever lightens you up, go ahead with that choice. This is where, before you get this response of whether that choice will work for you or not, you have to first trust your knowing. What does that mean? Trusting your knowing means what? ये सबसे पहले ये विश्वास रखना कि आप जानते हो और आप जानने के लिए इच्छुक हो. यू आर विलिंग टू नो मोर. जब आप ये बोलते हो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, एक इम्पल्सिव रिस्पॉन्स है. किसी को कोई अगर सवाल किया जाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. एज एन इन्फिनिट बीइंग, एक असीमित शक्ति जिसने ये बॉडी इस लाइफ टाइम में चूज की है, जिसने ये शरीर को धारण किया है इस लाइफ टाइम में, क्या ऐसा मुमकिन है कि उसको कुछ नहीं पता हो? You know about your life more than anybody. For that, you have to first have trust in you. And when you have that trust, you know that you can choose anything and everything that works for you better, whether it has worked for somebody else or not. So how does one develop that trust? आपका शायद अगला सवाल ये हो सकता है कि वो ट्रस्ट कहाँ से आए? वेल, ट्रस्ट कोई सिखाया नहीं जाता, पर वो सारे पास्ट रेफरेंस पॉइंट्स, वो सारे पास्ट के इंसिडेंट, जब शायद आपने ट्रस्ट किया था अपने ऊपर और अपने से भी ज्यादा किसी और के ऊपर, और वो ट्रस्ट शायद टूट गया, तो आपने ये निर्णय कर लिया किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए. Now that becomes your conclusionary point of view. जब आप ये निर्धारित कर लोगे कि विश्वास तो किसी पे करना ही नहीं चाहिए, विश्वास करो अगर दूसरों पे तो धोखा ही खाते हैं, so then you are not able to trust others and you are not able to trust yourself also, because आप अलग नहीं है. We all are one, and when we talk about oneness, कि हम सब एक हैं, एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं. So जब आप ये बोलते हैं कि I don't trust others, in a way you are also saying you don't trust yourself. What can you do to have trust in you, to be able to trust you and your choices? What can you do? क्या कर सकते हैं आप? Well, सबसे पहले सवाल करना शुरू करिए. उससे भी पहले अपने आप से आत्मीयता बढ़ाने की कोशिश करिए. आत्मीयता मतलब इंटिमेसी. अपने खुद से इंटिमेसी बढ़ाने की कोशिश करिए. और वो कैसे होता है? इंटिमेसी आप अपने आप से कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आप अपने आप को पूरा का पूरा वैसे देखते हैं जैसे कि आप हैं, विदाउट एनी फिल्टर्स. So we know what filters are. We have filters on Insta, we have filters on social media, and you tend to use filters when you're posting a picture or you're posting a video or whatever. Well, I am live right now and I am not using any filter. And I am all right with being judged by anybody, how I look, how I don't look, etc., etc. It doesn't matter. When you have that intimate relationship with yourself, where what other people are thinking about you, you don't care about it. It doesn't matter to you. You begin to become your best friend.
Whatever said and done, not everybody is going to approve your choices. Not everybody is going to approve of you, because the society, this reality actually breeds on judgment. जजमेंट, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, इज दैट पॉइजन, एक्चुअली जहरीली चीज है इन अ वे. अगर आप किसी को पहली बार मिलते हैं तो आपका पहला सवाल क्या होता है? आप क्या करते हैं? आप शायद ये पहला नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब. आप सबसे पहला सवाल ये करेंगे, आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं? पता है क्यों ये सवाल करते हैं? ताकि आप उस इंसान को कितनी इज्जत देनी है इसका आकलन कर सकें. तो अगर वो इंसान बोलता है, ओ आई एम अ गवर्नमेंट, आई एम इन गवर्नमेंट पोजिशन, और आई एम in working on a higher post, or I am a CEO, then you will talk to that person in that manner. Oh, I have to respect this person. But on the contrary, if the person says, oh, I am a homemaker, um, I just do this something for my hobby, and I have this small time business, and this blah blah blah, maybe you will then say, ah, okay, fine, it's all right. So never address someone based on your judgment. Every person is unique. Every person is special, including you. जब आप अपने आप को स्पेशल फील करेंगे, आप दूसरों को भी, जब आप अपने आप को ऑनर करेंगे, अपने आप को उस, अपने खुद को उस इज्जत के नजरिए से देखेंगे, आप सामने वाले को ऑटोमेटिक देखने लग जाएंगे उस नजरिए से. तो सबसे पहले उस आत्मीयता को बढ़ाने के लिए, खुद से आत्मीयता को बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें करिए जो आपको अच्छी लगती है. हम दूसरों से इंटीमेसी बढ़ाते हैं, दूसरों से आत्मीयता बढ़ाने के लिए पहले उत्सुक होते हैं. वी आर ऑलवेज इंक्लाइन टू गेट इंटीमेट with our friends, with our relatives, with family. However, leave yourself somewhere behind. So when you first begin to be intimate with yourself, आप सब कुछ देख पाएंगे बिना किसी फिल्टर के आपके बारे में, चाहे वो किसी और को अच्छा लगे या ना लगे. जब आप खुद को स्वीकारेंगे, खुद को ग्रहण करेंगे, खुद को रिसीव करेंगे, जस्ट एज इट इज, जस्ट द वे यू आर, आप देखेंगे आपका ट्रस्ट, आपका खुद पे विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. आप बेहतर फील करेंगे. यू विल ऑल्सो feel more positive in your life, more confident, more, capable of everything, because you have then stepped into your power. आपकी खुद की जो आत्मशक्ति है, आप उसके अंदर कदम रख चुके हैं. सो कि कहीं और बाहर कुछ ढूंढने के बजाय सबसे पहले खुद के अंदर देखिए, चाहे वो अच्छाइयां हैं, चाहे वो कमियां हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको देखिए. और फिर ये सवाल करिए, ये जो अच्छाई है मेरे बारे में, ये किसका नजरिया है, मेरा खुद का या बाहर वालों का? और ये जो कमियां हैं मेरे बारे में, ये किसका नजरिया है, मेरा खुद का या बाहर वालों का? जब ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि आप खुद को भी जज कर रहे हैं और दूसरों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपको जज करें, यस, you become invitation of judgment in your universe, and so judgment begets judgment. And how can you negate judgment? आप judgment को कैसे हटा सकते हैं अपनी लाइफ से? बहुत सिंपल सा टूल है, बहुत सिंपल सी चीज है, शायद आपने 1000 बार सुनी है, और ये जजमेंट का एंटीडोट है. और वो क्या है? वो है ग्रैटिट्यूड. जब आप दिल से किसी को, और किसी के भी पहले खुद को धन्यवाद करते हैं फॉर वॉट एवर वे यू आर ऑन द प्लैनेट राइट नाउ, जो भी आप हैं, अपनी हर चीज को, चाहे फिर वो आपकी बॉडी हो, जो चीजें आप करते हो, जैसे आप करते हो, जब आप सब सारी चीजों को बस स्वीकार लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और उसके साथ अपना खुद का धन्यवाद करते हैं, आप देखेंगे आप बाहर आपके लिए धन्यवाद निकलना बहुत आसान हो जाएगा. Gratitude is that antidote to judgment, which will actually help you eliminate, eradicate judgment,
And when you're operating less from judgment, you will see the kindness and love for self has gone up, and then it has gone up for everything outside also. So here we are today. I don't really know, I don't really think कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, but we have these wonderful 30-minute calls on consciousness bites to live life every Sunday, 9:30 p.m., which we also relay on Insta. You must be watching live on Insta right now. And you can send in your questions. आप और मुझसे क्या सुनना चाहेंगे, किस बारे में और सुनना चाहेंगे, ताकि मैं उन टॉपिक्स को लेकर आऊं फिर नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, और हम उसके बारे में जो भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ वो शेयर करूंगी. प्लीज अपने कमेंट्स जरूर छोड़िए. अपने आप और क्या सुनना चाहेंगे वो कमेंट्स में लिखिए, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बट मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है, और मैं आपसे सीखना चाहूंगी कि आपने क्या सीखा है. तो सीखना जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होती है, 1 वे प्रोसेस नहीं होती है. तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं फैसिलिटेटर ऑफ चेंज जरूर हूँ, मैं कोच ऑफ चेंज हूँ. सो चेंज तो कभी भी पॉसिबल है और हर एक की लाइफ में पॉसिबल है. And we all are learning till our last breath, aren't we? So I would love to learn from you. And if you would like to learn from me, yes, do mention the topics. And I have these wonderful classes that I facilitate, which is Access Bars International Course, Access Facelift International Course, the Foundation 4-day course, which actually changes the entire foundation of your life. आप अपनी लाइफ को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं, और आपकी लाइफ एक्चुअली आपको सरप्राइज कर देती है कि अरे ये भी पॉसिबिलिटी थी प्लानिट पे जो हमें पता ही नहीं थी. And money courses that I do. We just finished one class today after 11 days. We'll be starting the next one, 11 days, BM to HM, being money to having money, in the second week of February. Being money. मनी आपसे जुदा नहीं है, धन आपसे जुदा नहीं है. तो धन को बुलाने की बजाय, अट्रैक्ट करने की बजाय, जो दुनिया बोलती है अट्रैक्ट मनी, आप अट्रैक्ट वो करते हो जो आपको पता है कि आपके पास नहीं है. जब आप अंदर के इस आत्मिक भाव को चेंज कर दोगे कि आपके पास तो बहुत सारी प्रचुरता है, देयर इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस, देन यू डोंट अट्रैक्ट, यू बिकम वन. So become money, be money to have money in your life. With this, thank you so much for being here, for listening to me. जो लोग अभी हैं कॉल पे देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, I am very, very, very thankful to you for your presence on this platform, and thank you so much. Bye bye. See you next week, 9:30 p.m. Same time, same place.